Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The Knowledge School, Kite Campus, Class 6, Computer, Chapter number 2, Worksheet, Lecture number 7. Chapter number 2, the topic is Formatting Data in Excel 2013. In the previous lecture, we have discussed about the MS Excel and its formatting, how to enter the data, how you can change by using the different terms, like if you want to change the font size, increase the font, decrease font, it's your choice. So you can all change the formation by using this Excel pattern. So basically you can say like the presentation of data and its appearance of a printed page is called formatting. Now today we start about the worksheet, this chapter. Question number 1 is MCQs. The presentation of data and its appearance on the printed page is called, as I told you before, that answer is formatting. Second one is a dash is a set of letters and numbers written in particular style. Of course that answer is font. कि फॉन्ट एक बेसिकली ऐसा पैटर्न है जो आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी राइटिंग स्टाइल, कोई भी पार्टिकुलर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं. बोल्ड बटन कमांड यानी बोल्ड बटन की शॉर्टकट की आपने बतानी है. आपको बोल्ड बी से ही पता चल रहा है कि इसकी शॉर्टकट की Ctrl+B है. अंडरलाइन कमांड Ctrl+U. इटैलिक कमांड Ctrl+I. Number 6 MCQs. Alignment refers to where the data is placed within the dash of cell. That answer is boundary. Font formatting command include the dash. Of course font formatting includes all of these because bold is also font pattern, is italic also, and underline also. So answer is all of these. The unit in which font size is measured in points. The button used to add background colors to cells, fill color. Of course background color के लिए हम fill color use करते हैं. The option that has buttons to display the data horizontally or vertically or at angle, that's called the orientation. And last one is the group on the home tab that has decreased decimal and increased decimal buttons, that includes in the number form. Now question number 2, fill in the blanks. The presentation of data and its appearance on a printed page is called formatting. Second one is font size is measured in points. Third one is dash refers to position of data within the boundary of cell. That answer is alignment. Fourth one is dash are always right aligned numbers. आप अक्सर देखें, आपको पता चलता है कि जब राइट साइड पे आप कोई भी यूज़ करें तो आप नंबर जो है वो अलाइंड फॉर्म में होंगे, यानी उस तरतीब में नंबरिंग दी होगी. तो उसके अलावा आप देखें आपको बुलेट्स भी उसमें शो होते हैं. उसके अलावा डॉटेड फॉर्म में भी होता है. लाइनिंग अगर आप किसी पैटर्न में भी चाहें अपनी मर्ज़ी से अप्लाई कर सकते हैं. लास्ट वन इज़ डैश इज़ अ रिलेटिव फिजिकल पोजीशन और रिलेटिव फिजिकल पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट. दैट आंसर इज़ ओरिएंटेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मैच द कॉलम. अब ये कॉलम ए और कॉलम बी, इसकी हेल्प से आपने कॉलम सी को फिल करना है और कॉलम बी में आंसर्स जो हैं वो शफल फॉर्म में हैं. तो आपने कॉलम ए के अकॉर्डिंग आपने कॉलम सी में उसका राइट आंसर लिखना है. जैसे फर्स्ट वन है इस कैलिबरी, डैट आंसर इज़ द फॉन्ट. तो आपने सी के नंबर 1 पार्ट में क्या लिखना है, फॉन्ट. जूम इन का मतलब होता है इंक्रीज़. आपको IN से ही याद हो जाना चाहिए कि IN फॉर इंक्रीज़, यानी आपने कोई भी फॉन्ट साइज़ आपने उसका डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपने उसको इंक्रीज़ करना है, या अगर आप उसको जूम इन करके देखना चाहते हैं तो आप इसकी हेल्प से देख सकते हैं. उसके बाद है फ़ॉन्ट साइज़. 26 एक फ़ॉन्ट साइज़ का ही एक पॉइंट है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट दैट्स कॉल्ड द ओरिएंटेशन. लास्ट वन इज़ पर्सन स्टाइल कॉमा स्टाइल. तो ये बेसिकली हमारे नंबर फॉर्मेशन में आते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, नंबर फॉर्मेटिंग कमांड्स. क्वेश्चन नंबर 4 देखें स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है. ये एक पिक्चर बनी हुई है और आपने इन ओरिएंटेशन के पॉइंट्स बताने हैं कि कौन सा पॉइंट क्या क्लियर कर रहा है. अब नंबर आप लेफ़्ट साइड पे देखें, बी में जो टेक्स्ट फॉर्म जहाँ पे लिखा हुआ है, तो बेसिकली वो कौन सी डायरेक्शन शो कर रही है, वो है एंगर काउंटर क्लॉकवाइज. उसके बाद आप सी में देखें तो ये सी वाला टेक्स्ट पैटर्न हमें क्या शो कर रहा है कि ये एंगल कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, दैट्स एंगल क्लॉकवाइज.
उसके बाद डी पार्ट में देखें डैट्स इज़ अ वर्टिकल टेक्स्ट, यानी वर्टिकल टेक्स्ट फॉर्म में है। उसके बाद ई में देखें आप डैट्स अ रोटेट टेक्स्ट अप, यानी अप फॉर्म में है। और लास्ट वन आप एफ में देखें तो रोटेट टेक्स्ट डाउन है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। ये कुछ पिक्चर्स हैं, बहुत इजी हैं स्टूडेंट्स, आपको पिक्चर से ही पता चल गया होगा कि इनके डिवाइसेस के क्या नेम है। अब आप ये देखें, नंबर 1 आपको जो पिक्चर शो हो रही है इसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक कार्ड रीडर। साथ देखें आपको राइट साइड पे कार्ड भी नज़र आ रहा है। ये एक मैग्नेटिक कार्ड है, इसके ऊपर कोडिंग स्कीम होती है, सीक्रेट कोड होते हैं जो ये डिवाइस जो है इसको स्कैन करती है। उसके बाद सेकंड देखें आप पिक्चर, आपको एक कार्ड शो हो रहा है जिसके ऊपर कोडिंग स्कीम है और इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। उसके बाद आ जाएं आप थर्ड पिक्चर पे, दैट इज़ कॉल्ड द स्मार्ट कार्ड रीडर। नेक्स्ट वन इज़ अ फ्लैट बेड प्लॉटर। ये एक बहुत बड़े प्लॉटर बिग साइज़ में होते हैं और इनका जो है मकसद बड़े बड़े प्रिंट फॉर्म में ये प्लॉटर जो है हमें देते हैं। जैसे कोई ब्रोशर हो गया या कोई बड़ा, आपने अक्सर आप देखते हैं बाहर बड़े बड़े ऐड आपको नज़र आते हैं या कमर्शियल्स होते हैं, तो ये बेसिकली उसके लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखें ब्रेल प्रिंटर है। उसके बाद ये देखें आपको LCD प्रोजेक्टर नज़र आ रहा है। ये आपको स्टूडेंट्स पता ही है कि प्रोजेक्टर हम क्यों यूज़ करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेजेस या अक्सर स्कूल लेवल में भी ये प्रोजेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद देखें ये ड्रम प्लॉटर है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। सो इट्स योर होमवर्क, यू हैव टू लर्न द वर्कशीट ऑफ चैप्टर नंबर 2 एंड यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑन शीट। थैंक यू।